class. So today what we had seen, we had started with some basic concepts of organic chemistry. So basic thing we had seen about carbon. Now this is offer which we are offering you, like classroom videos are there, 3D videos, lecture videos are there, smart board videos, recent live lectures are also available on our app. Apart from this, we are having lot of content related to our subject and free solutions. Lot of free solutions are available which you can easily take advantage of that. After that, we are having practice test, worksheets are also there, doubt session also we keep for students. So these are the some offers which we are offering you. Apart from this, see, from class KG to 10th standard, the basic fees are 30,000, but on offer you are getting it, this offer only at 899 rupees, and same here for 11th and 12th. So this is very nice offer for you all. Grab this offer ASAP and take advantage of this. Okay, so these are the something. After that, let's continue with our topic. So last time हमने कार्बन की कुछ बेसिक्स देखे थे, and today we have to start with the another part of this chapter, that is the main backbone of your organic chemistry, that is functional group, right? तो functional group मैंने पहले ही बताया है आपको कि functional group आपके organic chemistry का backbone है. Without learning functional group, we can not start our organic chemistry. So first we'll have a focus on our functional group. So what is functional group? अब कुछ functional group जो हमने 10th standard में पढ़े हैं, अगर हम उसको recollect करें, so what that functional group is: alcohol, phenols, aldehyde, ketone, carboxylic acid. So these all are some functional group which you already know because we have done this in 10th standard, right? तो यहाँ पे अगर हम कुछ यहाँ पे functional group लिखें तो और उसको फिर हम definition के point of view से समझते हैं. So let's take some functional group like OH, your aldehyde, ketone. ठीक है, ketone is what? C double bond O, and it is attached to two alkyl group, carboxylic acid, and so many functional group we know. And in 11th standard you are going to study so many new functional group also. तो यहाँ पे ये इतने functional group हैं. अगर आप एक कोई भी functional group लेते हो जैसे कि OH, अब OH क्या है? ये एक group of atom है, ये group of यहाँ पे different atom है, ठीक है. अब ये जो group of atom है, ये आप एक particular compound को define करता है. इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एटम को देख के आप उस कंपाउंड की केमिकल कैरेक्टरिस्टिक को कम्प्लीटली डिफाइन कर सकते हो, ठीक है. जैसे ये OH है तो OH देख के मैंने तुरंत आइडेंटिफाई कर लिया कि ये अल्कोहल है. तो अल्कोहल है तो अल्कोहल की एक डिफरेंट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है. सो व्हाट इज एग्जैक्टली फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अ फंक्शनल ग्रुप इज द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एटम or bonds within a compound that is responsible for the characteristic chemical reaction of that compound. It is simply a group of atoms which define the total chemical characteristics of that compound. ठीक है, जैसे ये aldehyde है, CHO, ये भी एक group of atom है, different atoms एक group में present हैं, और इस functional group को देख के मैं easily इसका chemical characteristics define कर सकती हूँ. So this is functional group is nothing but it is the group of atom which explain you the complete chemical characteristics of that compound, that organic compound. ठीक है, तो ये तो कुछ basic functional group हैं. इसके अलावा हम बहुत नए, मैंने बताया आपको, नए बहुत सारे functional group की study करेंगे. So let's here begin with that. These are few functional group. ठीक है, तो अब यहाँ पे ये सारे basic functional group हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप दैट यू हैव टू लर्न. कुछ तो आपको आते होंगे और कुछ नए हैं इसमें से, तो हम हर एक फंक्शनल ग्रुप को थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे और उसके बाद आपको एग्जैक्टली इस टेबल में से क्या लर्न करना है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, आपको पूरा टेबल तो एज इट इज़ लर्न करना नहीं है. अब टेबल में से भी क्या लर्न करना है एग्जैक्टली, अब वो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. सो पहले एक बार देख लेते हैं हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स वी आर हैविंग, देन वी आर गोइंग टू स्टडी वन बाय वन. ठीक है, जैसे ये फर्स्ट हो गया आपका अल्कोहल,
ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, असाइल क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट से, दैट इज अल्कोहल। So let's begin with the alcohol here. So let's start from the first, your organic compound. So this is my organic compound, alcohol. ठीक है, what is the formula of alcohol? alcohol का formula क्या है? alcohol का formula है ROH. What is R? R is nothing but your alkyl group. alkyl group क्या होता है? हमने पढ़ा है already. alkyl group क्या होता है? जैसे कि आपका एक कोई भी alkene ले लो, मीथेन। अब मीथेन में से जब आप एक हाइड्रोजन रिमूव करते हो, मीथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो क्या हो जाएगा? CH3। तो पहले ये था मीथेन, अब एक हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद ये हो जाएगा मिथाइल। ठीक है, तो मतलब अल्काइल कैसे बनता है? एल्केन से ही बनता है। कैसे बनेगा? आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर दोगे और वो हो जाएगा अल्काइल। अल्काइल को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज R? R इज योर अल्काइल ग्रुप। अब R कैन बी योर मिथाइल ग्रुप, इट कैन बी योर इथाइल ग्रुप, इट कैन बी योर प्रोपाइल ग्रुप, इट कैन बी योर ब्यूटाइल ग्रुप एंड सो ऑन। फाइन, तो ये हो गया आपका R, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में और इसको माइंड में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज माई R। ठीक है, अब R क्लियर होने के बाद हम कंटिन्यू करते हैं अपने अल्कोहल के साथ। सो लेट्स बिगिन विद दैट। ठीक है, सो दिस इज माई अल्कोहल, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर अल्कोहल ROH। ठीक है, उसके बाद इसका एक IUPAC नॉमेनक्लेचर देख लो। IUPAC नॉमेनक्लेचर, ये हमें बेसिकली हमें IUPAC नॉमेनक्लेचर लर्न करना है। ठीक है, IUPAC नॉमेनक्लेचर हर एक कंपाउंड का हमें लर्न करना है फॉर्मूले के साथ। ठीक है, तो इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या है? एल्केनोल। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम लिख लें, व्हाट इज एग्जाम्पल? अब R की जगह पे कोई भी मिथाइल ग्रुप आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस। सो दिस इज व्हाट? मीथेनोल। दिस इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट इज, लेट्स टेक अनदर फंक्शनल ग्रुप, ईथर। ईथर क्या होता है? अब ये आपके लिए नया है, ये आपने 10th में नहीं पढ़ा है। सो दिस इज न्यू फॉर यू। व्हाट इज ईथर? ROR इज व्हाट? ईथर। ठीक है, ईथर का क्या होता है IUPAC नॉमेनक्लेचर? अल्कोक्सी, अल्कोक्सी एल्केन। तो ये कैसे नेम करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी हियर देयर आर 2 R। ठीक है, आउट ऑफ these 2 R कैन बी सेम और these 2 R कैन बी डिफरेंट। ठीक है, एक हो सकता है मिथाइल, एक सकता है इथाइल, या दोनों इथाइल हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो या तो ये दोनों R सेम होंगे या तो ये दोनों R डिफरेंट होंगे। फाइन, तो इसका क्या है IUPAC नॉमेनक्लेचर? अल्कोक्सी एल्केन इज इट्स IUPAC नॉमेनक्लेचर। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि इसका IUPAC नेमिंग करते कैसे हैं। सो लेट्स राइट डाउन दिस। देखो, दो चीज़ आपको लर्न करना है यहाँ पे, एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये फंक्शनल ग्रुप और दूसरा इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर। ये दो आपको लर्न हुआ तो बाकी की सारी चीज़ें आप खुद ही फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, ये लर्न हो जाएगा तो आप तो n नंबर ऑफ एग्जाम्पल उस कंपाउंड का बना सकते हो। सो अल्कोक्सी एल्केन। सो लेट्स टेक एग्जाम्पल हियर, लेट्स टेक डिफरेंट R, CH3O, C2H5। ठीक है, C2H5। ओके, व्हाट वुड बी नेम ऑफ दिस? अल्कोक्सी मैंने बोला। अब अल्कोक्सी कौन होगा? यहाँ पे जो छोटा अल्काइल ग्रुप होगा वो ऑक्सीजन के साथ मर्ज होके अल्कोक्सी बना देगा। तो छोटा कौन सा है अल्काइल ग्रुप? मिथाइल। सो यू विल राइट मिथॉक्सी, मिथॉक्सी एंड द बिगर अल्केन विल फॉर्म एल्केन, दैट इज ईथेन। ठीक है, सो दिस इज योर ईथर। सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे आप R को चेंज करते जा सकते हो और डिफरेंट एग्जाम्पल्स फॉर्म कर सकते हो, तो इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट इज, लेट्स टेक एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्या होता है? वी नो वेरी वेल, राइट? एल्डिहाइड इज दिस। ठीक है, एल्डिहाइड का IUPAC नेम होता है एल्केन से डिराइव, तो इसका नाम होता है एल्केन। ठीक है, एल्केन होता है तो E हटा के लास्ट का हम उसको R से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाता है एल्केनाल। ओके,
So let's take example of this CH3 C double bond OH. Number of carbon you can see here is 2. So its name will be ethanol. Its name will be what? Ethanol. Okay. So this is ethanol. Number 4 पे आता है आपका कीटोन. Number 4 पे कीटोन is R C double bond O R. C double bond O को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप. Carbon attached to the oxygen through double bond is called as what? Carbonyl group. Fine. So let's see its IUPAC name. इसका भी alkane से derive होता है. Alkane का E ONE 1 से replace हो जाता है तो हो जाता है alkanone. अब इसका एक example लेते हैं. CH3 C double bond O CH3. Okay. Number of carbon is 3. So what you will going to write? 1 2 3. तो 3 है तो कौन सा alkene होगा? Propane. But will write what? Propanone. ठीक है? Propanone you are going to write. So this is another important organic compound. Next is carboxylic acid. Carboxylic acid. ठीक है? अब carboxylic acid लिखते हैं R C double bond O OH. Carboxylic acid. Okay? So carboxylic acid के लिए what is your IUPAC name? Alkanoic acid. It is alkanoic acid. Fine. Alkanoic acid. देखो ये भी alkane से derive होता है. alkane का E जो है oic acid से replace हो जा रहा है. What will be its formula? CH3 C double bond O OH. अब number of carbon 2 दिख रहे हैं तो you will write what? Ethane. But it would be ethanoic acid. ठीक है. Let's take the another one. Acetyl या acyl you can write acyl chloride. अब ये कुछ नया है. देखो कुछ नए मैंने कहा था फंक्शनल ग्रुप आएंगे. So this is the new one. R C double bond O Cl acyl chloride. तो इसका क्या होगा? इसका IUPAC नेम हो जाएगा. अल्केन से ही बनेगा. अल्केनोइल halide. Alkanoyl halide. ठीक है. Now what you are going to write? CH3 C double bond O Cl. Alkanoyl halide. तो number of carbon you can count here 1 2. तो ये क्या हो जाएगा? Ethanoyl chloride. ठीक है. And the last and the most important is acid anhydride. तो last one is acid anhydride. Acid anhydride. अब acid anhydride का सबसे पहले देखो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे कि फॉर्म कैसे होता है आपका acid anhydride. क्योंकि सिर्फ अगर आप फॉर्मूला देखोगे सो इजिली यू गोइंग टू फॉरगेट दैट फॉर्मूला बिकॉज फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है. होता नहीं पर दिखता है. तो उसको फॉर्म कैसे करेंगे उसका एक बार आपने फॉर्मेशन देख लिया तो वो लाइफ टाइम आपको दिमाग में रहेगा. तो देखते हैं हाउ टू फॉर्म योर एसिड एनहाइड्राइड. तो उसके लिए मुझे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है. सो आई एम टेकिंग 2 कार्बोक्सिलिक एसिड 1 and 2 carboxylic acid. These 2 carboxylic acid will undergo dehydration. Dehydration मतलब removal of water. So यहाँ से water चला जाएगा. So if water is going out, H2O is going out. What is left behind? See what is left behind? R C double bond O. R C double bond O. अब क्या बचा है यहाँ पे? R C double bond O. इसको हम बोलते हैं असाइल ग्रुप. तो 2 असाइल ग्रुप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं ऑक्सीजन के थ्रू. सो ये होता है आपका एसिड एनहाइड्राइड. सो आई राइट दिस फॉर्मूला हियर एसिड एनहाइड्राइड. ठीक है. तो इसका IUPAC नेम होता है एल्केनोइक एनहाइड्राइड. बट जब हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो अब हम उसको देखेंगे. तो एग्जाम्पल तो आप लिख सकते हो. सिर्फ R को आपको चेंज करना है. Rest all thing will be as it is. Now these 2 R can be same or it can be different also. Fine. So these are your some important functional group that we have to study. Okay, in your 11th as well as in your 12th standard. अब ये सारे functional group के बेस पे ही आपका complete organic chemistry होता है. और कुछ बीच में नए आ सकते हैं जैसे amines हो गया,
अमाइंस में 3 टाइप के होते हैं, तो उसका तो नॉमेनक्लेचर टोटली डिफरेंट होता है, तो हम उसको डेफिनेटली पढ़ेंगे व्हेन विल कम टू दैट चैप्टर. सो बट दीज आर द सम बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वी हैव टू लर्न. ओके, so this is your organic compound that we have to learn. Next we're going to study today what are the nomenclature of organic compound. Nomenclature मतलब क्या होता है? Naming of organic compound. हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग कैसे करते हैं, हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण कैसे करते हैं. तो देखो, जैसे हमारा 2 नाम होता है, एक हमारा ऑफिशियल नेम होता है, एक हमारा निक नेम होता है. एग्जैक्टली वैसे ही आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक होता है कॉमन नेम और दूसरा होता है IUPAC नेम. ठीक है, IUPAC नेम एक्चुअली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने सबने मिलके कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं और उस रूल को यूज करके आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेमिंग देनी होती है. तो ये हो गया आपका IUPAC नेमिंग, जो कि एक ऑफिशियल नेमिंग होती है, और दूसरा होता है कॉमन नेम, जो कि निक नेम होता है. निक नेम, कॉमन नेम कैसे डिराइव होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का? कॉमन नेम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हम कैसे डिसाइड करते हैं? उनके जो सोर्सेस रहते हैं, जिस सोर्स से वो डिराइव होते हैं, उसके बेस पे उनका कॉमन नेम रखा जाता है. ठीक है, और IUPAC नेम कैसे रखा जाता है? IUPAC नेम में मैंने बताया कुछ रूल्स रहते हैं, उस रूल्स को हमें फॉलो करके, यूज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करनी होती है. नाउ व्हाट इज IUPAC? IUPAC is the International Union of Pure and Applied Chemistry. I told you this is one of the organization which has given a set of rules, and by following those all set of rules we have to name our organic compounds. Okay, so this is your common name and IUPAC name. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के भी 2 तरह से नामकरण किया जाता है, एक कॉमन नेम रखा जाता है और एक होता है IUPAC नेम. ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ कितने टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने वाले हैं, मतलब कितने टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम यहाँ पे नेमिंग करने वाले हैं, कितने टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम नॉमेनक्लेचर देखने वाले हैं. तो हम देख लेते हैं कितने टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें देखना है. तो फर्स्ट जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो होगा नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन विदाउट फंक्शनल ग्रुप, दैट इज स्ट्रेट चेन. ठीक है, विदाउट फंक्शनल ग्रुप दैट इज स्ट्रेट चेन. सो किस टाइप का कंपाउंड होगा? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, मतलब ओपन चेन होगा. तो ये ओपन स्ट्रेट चेन जैसा कुछ कंपाउंड होगा, उसकी हमें नेमिंग करनी होगी. दूसरा जो कंपाउंड है नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन विदाउट फंक्शनल ग्रुप, बट दैट विल बी ब्रांच 1. मीन्स आपका इस तरह से कार्बन का कुछ स्ट्रेट चेन होगा और उसमें कहीं तो ब्रांच आ जाएंगे. ब्रांच कौन होते हैं? अल्काइल ग्रुप ब्रांच के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अल्काइल्स आर विल बी देयर इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच इन योर स्ट्रेट चेन. थर्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन विथ फंक्शनल ग्रुप, मतलब आपका उसमें ब्रांच भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है. समझो ये ब्रांच है और इसी चेन में कहीं तो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, चाहे वो OH ले लो, एल्डिहाइड ले लो, कीटोन ले लो, ईथर ले लो, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, अमाइंस ले लो, जो भी चाहो ले लो, बट कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट होगा. नेक्स्ट टाइप क्या है? नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन विथ मोर देन 1 सिमिलर फंक्शनल ग्रुप, मतलब आपका फॉर एग्जांपल आपका ये चेन है, अब उस चेन में समझो 2 OH प्रेजेंट हैं, सिमिलर 2 फंक्शनल ग्रुप जब प्रेजेंट रहेंगे आपके चेन में, तो उस टाइप के कंपाउंड की हम कैसे नेमिंग करते हैं वो हम पढ़ेंगे अपने 4th टाइप ऑफ कंपाउंड में. 5th वन जो है नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन with more than 2 functional group, with more than 1 different functional group. Like अगर आपका ये चेन है तो चेन में फॉर एग्जाम्पल एक जगह आपका कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है और दूसरी जगह आपका हाइड्रोक्सिल दैट इज अल्कोहल इज प्रेजेंट. तो जब 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे चेन में, तब उसको हम कैसे नेमिंग करेंगे ये हम यहाँ पढ़ेंगे. ठीक है, सो दिस इज द सम काइंड ऑफ, इन द लास्ट वन इज योर एलिसाइक्लिक कंपाउंड. एलिसाइक्लिक मतलब क्लोज चेन कंपाउंड. अब वो क्लोज चेन कंपाउंड आपका सिंपल क्लोज साइक्लोफॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है
या तो एरोमेटिक के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। तो जब इस तरह का कंपाउंड होगा, क्लोज चेन रिंग फॉर्म में कंपाउंड होगा, तो उसकी हम कैसे नेमिंग करेंगे ये भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें इतने टाइप ऑफ कंपाउंड की स्टडी करनी है। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें कि इतने सारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें पढ़ना है। तो हम अपने फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं, जो कि मेरा सिंपल सा एक कार्बन का चेन है, जिसमें ना कोई फंक्शनल ग्रुप है ना जिसमें कोई ब्रांच है। तो लेट्स बिगिन विद दैट। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट कंपाउंड इज दिस स्ट्रेट चेन, ठीक है। तो अब बनाते हैं सबसे पहले एक स्ट्रेट चेन, और इसके पहले मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगी, और वो फॉर्मूला हमें थ्रू आउट द होल नॉमेनक्लेचर यूज होगा, हम यूज करेंगे और आपको लर्न भी करते जाना है। तो लेट्स बिगिन विद दैट। ये एक चेन हो गया मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं इस चेन को। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे, ओके। सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया मेरा हेक्सेन, ठीक है। हेक्सेन, इसके आगे मैंने लगा दिया N, मतलब नॉर्मल हेक्सेन, ठीक है। तो ये तो मैंने डायरेक्ट लगा दिया N हेक्सेन, बट इसे नेम करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है। क्या फॉर्मूला है? प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। सफिक्स आर ऑफ टू टाइप, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स कौन होता है ये मैं पूरा लिखती हूँ, सो यू विल अंडरस्टैंड इन मोर बेटर वे। दिस इज प्रीफिक्स, वर्ड रूट, ठीक है, वर्ड रूट, एंड दिस इज सफिक्स। सफिक्स है प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स की जगह पर प्रीफिक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? प्रीफिक्स की जगह पे आपका आता है ब्रांच, आप बोल सकते हो। जब ब्रांच प्रेजेंट रहते हैं तो हम उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट आ सकते हैं प्रीफिक्स की जगह पर। इसके अलावा देखो, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा हो कौन सी ब्रांच की मैं बात कर रही हूँ? तो आप देख लो यहाँ पे, ये कार्बन का चेन है, अगर इसको कोई ब्रांच प्रेजेंट होगा इस तरह से, तो ये जो ब्रांचिंग है अल्काइल ग्रुप की, इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट रहते हैं इसको हम प्रीफिक्स की जगह पे लिखते हैं, सबसे आगे लिखते हैं। इसके अलावा प्रीफिक्स के साथ, प्रीफिक्स की जगह पर, प्रीफिक्स की प्लेस पर और कौन आ सकता है? हैलोजेंस। अगर आपके चेन में हैलोजन प्रेजेंट है तो वो आ सकता है प्रीफिक्स के प्लेस पे। इसके अलावा कौन आ सकता है? इसके अलावा जैसे कि हमने आपका 5th टाइप ऑफ कंपाउंड पढ़ा था, अगर मेरे चेन में 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं तो उसमें से जिसको लीस्ट प्रेफरेंस मिलेगा वो फंक्शनल ग्रुप को हम प्रीफिक्स की जगह पे लिखेंगे, ठीक है। सो फंक्शनल ग्रुप विथ लीस्ट प्रेफरेंस, ये और आपको समझेगा जब हम इस टाइप के एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, विथ लीस्ट प्रेफरेंस। वर्ड रूट कौन होता है? व्हाट इज वर्ड रूट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्ड रूट। मीथेन अल्केन फैमिली के सारे मेंबर्स को आप जानते हो, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेप्टेन, हेक्सेन। तो सब सारे मेंबर्स के एंड से एन को हटा दो, तो क्या हो जाएगा? मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक एंड सो ऑन, राइट। तो ये हो जाएगा आपका वर्ड रूट, इसे हम कहते हैं वर्ड रूट। सफिक्स में क्या आएगा? प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, 2 टाइप के सफिक्स होते हैं। प्राइमरी सफिक्स आपका बताता है कि आपके चेन में, ये पूरा जो थ्रू आउट द होल चेन है, उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है कि डबल बॉन्ड भी एक आ गया है, या कहीं ट्रिपल बॉन्ड भी है क्या। तो आपको एग्जैक्टली क्या देखना है? पूरे चेन में कहीं सिंगल या सारे सिंगल है, कि कहीं डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो अगर सारे सिंगल होंगे तो हम एन लिखेंगे, अगर एक भी डबल हो गया तो इन लिखोगे, एक भी ट्रिपल हो गया तो आइन लिखोगे, और डबल ट्रिपल दोनों हो गया तो आइन इन दोनों का यूज करोगे, ठीक है। कैसे यूज करेंगे सब हम देखेंगे, डोंट वरी। सेकेंडरी सफिक्स में
की जगह पे हम फंक्शनल ग्रुप मेंशन करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर के टर्म्स में, ठीक है। जैसे एल्केनोल देखा था हमने, तो वो कैसे यूज़ करते हैं वो भी हम देखेंगे, बट फिलहाल के लिए आप ये फॉर्मूला देख लो, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट हैलोजन फंक्शनल ग्रुप आते हैं प्रीफिक्स की जगह पे, लीस्ट प्रेफरेंस वाला फंक्शनल ग्रुप, वर्ड रूट इज दिस एंड दिस इज योर सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स की जगह पे एन, इन, आइन आता है, सेकेंडरी सफिक्स की जगह पे आता है फंक्शनल ग्रुप। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टाइप हियर। तो फर्स्ट टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो ये रहा एग्जाम्पल फॉर योर फर्स्ट टाइप। सो लेट्स सॉल्व दिस एग्जाम्पल। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि इज दिस स्ट्रेट चेन? जरूरी नहीं है चेन आप ऐसे स्ट्रेट ही प्रेजेंट रहे, चेन शुड बी कंटिन्यूअस, है ना। चेन जिगजैग भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी चेन हो सकता है कार्बन का, ठीक है। कार्बन के ऐसे भी चेन हो सकते हैं। इट शुड बी कंटिन्यूअस, दैट्स इट। तो ये कंटिन्यूअस स्ट्रेट चेन ही इसको माना जाता है। तो जैसे ये आपका चेन हो गया, so this is my chain, so number of carbon 1 2 3 4 5 6, so number of carbon is 6, so I'll write X hexane, ठीक है। और अगर आप बोलो कि फॉर्मूला यूज करके मैम इसको नेमिंग करो, तो चलो फॉर्मूला यूज करते हैं, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। सफिक्स आर ऑफ टू टाइप, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्रीफिक्स की जगह पे कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, प्रीफिक्स कुछ नहीं लिखेंगे, ना सब्स्टिट्यूएंट है, ना हैलोजन है, ना फंक्शनल ग्रुप है, कुछ भी तो नहीं है, तो प्रीफिक्स की जगह पे कुछ नहीं आएगा। वर्ड रूट की जगह पे आएगा हेक्स। प्राइमरी सफिक्स थ्रू आउट द होल चेन देयर इज सिंगल बॉन्ड, सो विल राइट एन। सेकेंडरी सफिक्स तो है ही नहीं, तो इसको हम लिखेंगे नॉर्मल हेक्सेन। लाइक दिस वुड बी इट्स नेमिंग, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। दिस इज माय नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो यहाँ ब्रांच आ जाएगा। ब्रांच आ जाएगा मतलब कैसे होगा? समझो मेरे पास एक चेन है, ठीक है, मेरे पास एक सपोज ऐसा एक लंबा सा चेन है। अब ये वाले चेन में कहीं से तो ब्रांच खड़े हो गए, जैसे ट्रीज में कैसे कहीं से भी ब्रांच आ जाते हैं, तो वैसे ही चेन में भी, कार्बन की चेन में भी कहीं से भी ब्रांच आ जाएगा। तो ये सपोज एक ब्रांच आ गया आपका, यहाँ से एक ब्रांच आ गया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कैसे नेमिंग करेंगे? तो पहले तो इस स्केलेटन को कंप्लीट कर लो, इसकी कंप्लीट नेमिंग जो भी है उसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। अब क्या करोगे? अब देखो, अब कुछ रूल्स हैं जो कि आपको दिमाग में रखना है। क्या रखना है भाई? यहाँ पे देखो ब्रांच है। सबसे पहले जो पहला रूल है वो है मेरा सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन क्या है? ये मेरा लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन है। उसके बाद नंबरिंग करनी होती है। और नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग हम उस जगह से, उस साइड से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे आपके सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबरिंग मिल रही हो, लोएस्ट पॉसिबल नंबरिंग। तो यहाँ से करोगे तो भी इसको सेकेंड मिल रहा है, यहाँ से करोगे तो भी इसको सेकेंड मिल रहा है। तो आप कहीं से भी कर सकते हो, दोनों साइड से नंबरिंग एज इट इज होगा, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। सो 1 2 3 4 5 6, तो मैंने दो काम किया। पहला सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, नेक्स्ट इज सेकेंड वन इज नंबरिंग, numbering of chain where your substituent should get lowest possible numbering। अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं और इस कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। सो दिस इज माय फॉर्मूला, सफिक्स इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स में अब देखो, प्रीफिक्स की जगह पे या तो सब्स्टिट्यूएंट आता है, या तो आपका हैलोजन आता है, या तो फिर क्या आता है मैंने बताया था, सब्स्टिट्यूएंट, हैलोजन या फंक्शनल ग्रुप विथ लीस्ट प्रेफरेंस। तो यहाँ पे हैलोजन तो नहीं है, फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट लिखोगे आप। सब्स्टिट्यूएंट क्या है? ये है एक ब्रांच जो होता है सब्स्टिट्यूएंट होता है, एक ये है, दोनों मिथाइल है, तो 2 बार मिथाइल है। तो मैं क्या करूँ, 2 बार मिथाइल ना लिख के मैं उसके आगे डाई लिख देती हूँ, डाई मिथाइल, और उसके साथ साथ डाई मिथाइल के आगे उन दोनों का आपको पोजीशन बताना पड़ेगा। सो यू विल राइट 3, 5
डैश, नंबर अल्फाबेट के बीच में डैश आएगा. 3,5 dimethyl, what you will write? Next is word root, number of carbon is 6, so you will write hex. उसके बाद primary suffix is ane, so 2,5-dimethyl hexane is its naming. ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है नेमिंग. अब कुछ हम ब्रांच चेन की देख लेते हैं एग्जाम्पल और उसको हम नेम करते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट वन. लेट्स नेम दिस कंपाउंड हियर. सो सबसे पहले मैंने क्या बताया था? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन. सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन. ठीक है, 2, 3, 4, 5. अब क्या करो? फॉर्मूला यूज करो और उसको नेम करो. माई फॉर्मूला इज प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. ठीक है, प्रीफिक्स की जगह पे कौन आता है? सब्स्टिट्यूएंट, हैलोजन. और क्या आता है उसकी जगह पे? आता है फंक्शनल ग्रुप विद लीस्ट प्रेफरेंस. तो हैलोजन तो है नहीं, फंक्शनल ग्रुप है नहीं, है क्या? सब्स्टिट्यूएंट है, और वो भी है मिथाइल ग्रुप. ठीक है, तो प्रीफिक्स की जगह पे लिख दो अपना सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, और मिथाइल का पोजीशन क्या है? 3. सो नंबर अल्फाबेट के बीच में लिखो हाइफन. 3 मिथाइल. अब आता है वर्ड रूट की बारी. कितने हैं? 5. पेंट. उसके बाद प्राइमरी सफिक्स ane. 3 methyl pentane would be its naming. So like this we have to name such compounds. अब ये देखते हैं. ठीक है, this is the different one. थोड़े थोड़े आपको डिफरेंट डिफरेंट रूल्स पता चलते जाएंगे. तो पहला तो रूल है हमारा सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन. ठीक है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन. नेक्स्ट इज नंबरिंग. अब नंबरिंग में यहां से लेफ्ट से शुरू करूं कि राइट से शुरू करूं? जब मैं लेफ्ट से शुरू करती हूँ तो सेकंड पोजीशन पे आते हैं मेरे 2 सब्स्टिट्यूएंट. जब मैंने राइट से शुरू किया तो सेकंड पोजीशन पे आता है मेरा 1 सब्स्टिट्यूएंट. तो जहां 2 सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको प्रेफरेंस मिलेगा. तो यू विल स्टार्ट योर नंबरिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. तो हो गया, सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई. अब करेंगे हम नेमिंग. तो नेमिंग कर दो. प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स, जिसमें कि है प्राइमरी एंड सेकेंडरी. तो प्रीफिक्स कौन है? 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं. 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं और तीनों के तीनों मिथाइल है. तो मैं 3 बार मिथाइल लिखने से अच्छा मैं लिख दूंगी ट्राई मिथाइल अलॉन्ग विथ इट्स पोजीशन. तो पोजीशन क्या है? सेकंड पे 2 मिथाइल है, तो 2,2. 4 पे 1 मिथाइल है, 4. 2,2, 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन. ठीक है, like this we have to name such compounds. All right. Okay. So what is alkyl group? Substituent आपके होंगे. Substituent will be your alkyl group. Alkyl group से हम मिल चुके हैं अच्छे से. Alkyl is R, जो कि बनता है आपके एल्केन से. एल्केन का एक हाइड्रोजन जब आप रिमूव करोगे तो वो बन जाएगा आपका alkyl group. Right? All right. Okay, let's move to the next question. See, this is the example. अब example पहले करते हैं, उसके बाद ये क्या rules है उसको हम देखेंगे. तो let's solve this example. तो सबसे पहले अपना क्या काम होता है? Select the longest chain and then we'll start numbering. ठीक है, अब नंबरिंग देखो मैंने यहाँ लेफ्ट साइड से इसलिए की क्योंकि लेफ्ट साइड से सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबरिंग मिल रही थी. यहाँ से राइट से अगर मैं स्टार्ट करती तो 1, 2, 3, 4th पे आता, बट जब मैंने लेफ्ट से स्टार्ट की तो सेकंड पे ही आ गया. ठीक है, तो इसलिए मैंने लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट की. अब मैं इसकी नेमिंग करूंगी. सो नेमिंग के लिए मैं अपना लिखूंगी फॉर्मूला, वर्ड रूट एंड सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स. तो प्रीफिक्स है 2. एक है मेरा इथाइल. कभी भी देखो ऐसे अगर दिया रहे ब्रांच के फॉर्म में तो ये इथाइल है जिसको स्प्लिट करके लिखा गया है. ठीक है, तो एक इथाइल एक मिथाइल है, 2 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है. इस कंडीशन में आप किस सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखेंगे? तो उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखेंगे जो अल्फाबेटिकली फर्स्ट आता है. ठीक है, सो इथाइल कम्स फर्स्ट अल्फाबेटिकली, देन योर मिथाइल कम. तो although we have numbered from the left hand side, but we're going to prefer that substituent which comes alphabetically first. So ethyl का पोजीशन क्या है? 6 इथाइल. उसके बाद आपका आता है
2-methyl nonane, ठीक है, दिस इज हाउ। अब यहाँ पे दो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट दिए हैं, तो उसमें से आप उसको पहले लिखोगे जो अल्फाबेटिकली पहले आता है, फाइन। सो ओके, so this is again same thing, same example is given and the one which I told you rules that you have to follow, दो है सब्स्टिट्यूएंट, तो उसमें से उसको आपको पहले मेंशन करना है नेमिंग में जो अल्फाबेटिकली पहले आता है, ठीक है। और अगर आपके पास दो से एक से ज़्यादा, जैसे हमने अभी एक चेन में देखा था, प्रीवियस एग्जाम्पल में क्या देखा था, 3 मिथाइल ग्रुप थे, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट में तीनों के तीनों मिथाइल ग्रुप थे, तो प्रीफिक्स पे, प्रीफिक्स की जगह पर 3 बार मिथाइल 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 लिखने के बजाय आप क्या लिखोगे, ट्राई मिथाइल, ठीक है। तो उसके आगे फिर से एक छोटू सा प्रीफिक्स, जैसे कि आप डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस तरह से प्रीफिक्स यूज करोगे, फाइन। आप डायरेक्ट नहीं, आप 3 बार या 4 बार वो टर्म या वो सब्स्टिट्यूएंट नहीं लिखने जाओगे, ओके। सो दिस इज द अनदर इम्पॉर्टेंट रूल दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। सो दिस इज द एग्जाम्पल विच ऑलरेडी वी डिड। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करोगे क्योंकि सेकेंड पोजिशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, बट अगर आप यहाँ से करते हो तो सेकेंड पे सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट होगा, सो यू विल स्टार्ट योर नंबरिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ओके ओके। अब ये कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखो, ब्रांच तो हमें पता है, छोटे छोटे ब्रांच के बारे में तो हमें पता चल चुका है, बट अगर ब्रांच भी ब्रांच फॉर्म में होगा, मतलब ब्रांच भी अगर कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो उसको कैसे नेमिंग करना है। जैसे देखो, मेरा ये चेन है, ये स्ट्रेट चेन है, ठीक है। अब एक स्ट्रेट चेन में देखो ये कॉम्प्लिकेटेड सी ब्रांचिंग है, तो जब ऐसा कुछ रहता है तो हमें कैसे उसको नेम करना रहता है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इसके लिए थोड़ा सा हम कॉमन नेम के टर्म्स भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो कॉमन नेम के टर्म्स यहाँ यूज आने वाले हैं। तो एक बार देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस नेमिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो 3 टाइप ऑफ कार्बन, जैसे कि प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन क्या होता है, व्हाट इज प्राइमरी कार्बन, व्हाट इज सेकेंडरी कार्बन, व्हाट इज टर्शरी कार्बन, ठीक है, व्हाट इज टर्शरी कार्बन, दीज ऑल थिंग वी नो। तो अब ये मेरा चेन है, ठीक है। अब जैसे इसका अगर मैं सबसे पहले तो कंप्लीट करूं, वैलेंसी। अब अगर आप देखो यहाँ पर तो 3 टाइप के कार्बन आपको दिखेंगे, आपको नहीं दिखेंगे जब तक आप समझोगे नहीं। तो चलो समझते हैं। यहाँ पे अगर इस कार्बन की आप बात करते हो तो ये कार्बन देखो एक ही साइड से कार्बन को अटैच है। तो जब कार्बन एक ही कार्बन को अटैच होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। अब ये कार्बन की अगर आप बात करो तो ये इस साइड से भी एक कार्बन को अटैच है, यहाँ से भी एक कार्बन को अटैच है, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये भी दोनों साइड से अटैच है, तो ये भी सेकेंडरी कार्बन है। इसकी अगर आप बात करते हो ये 3 साइड से अटैच है, 3 साइड से आप देख सकते हो 3 साइड से अटैच है, इसको टर्शरी बोलेंगे। ये प्राइमरी हो जाएगा, ये भी प्राइमरी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हर टाइप के कार्बन है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो सबसे पहले नॉमेनक्लेचर अगर आपको सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको ये समझ में आना चाहिए। दूसरी चीज, कुछ कॉमन नेम के टर्म्स हम देख लेते हैं। कॉमन नेम्स के टर्म्स, जैसे अगर मैंने एक चेन बनाया, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक चेन है CH3 CH3, अब सेकेंड कार्बन पे मैंने एक CH3 लगा दिया, ठीक है। तो ये सेकेंड कार्बन पे एक CH3 है। सेकेंड कार्बन पे अगर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है हम उसको बोलते हैं आइसो ग्रुप। कॉमन नेम की बात चल रही है, ठीक है, नंबरिंग सिलेक्शन कुछ नहीं है, कॉमन नेम की बात चल रही है। सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप आया तो वो हो जाएगा आइसो। और कॉमन नेम में जितने कार्बन है इंक्लूडिंग ब्रांच ऑल्सो, सबको हम इंक्लूड करते हैं। तो 1 2 3 4 तो हम लिख देंगे आइसो ब्यूटेन। कॉमन नेम में सारे कार्बन को हमें इंक्लूड करना पड़ता है। सेकेंड थिंग,
और एक टर्म जो आपको पता होना चाहिए, जैसे ये है सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप, तो जब सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप रहता है उसको हम बोलते हैं नियो, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने दिख रहे हैं 5, तो मैं लिखूंगी नियो पेंटेन। तो ये 2 टर्म आपको आना चाहिए, सेकेंड कार्बन पे 1 मिथाइल ग्रुप सो आइसो, सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप सो नियो। तो ये कॉमन नेम के टर्म्स है। कॉमन नेम में जब हम नेमिंग करते हैं तो हम सारे कार्बन को इंक्लूड कर लेते हैं, राइट। तो अब चलते हैं, यहाँ पे देखो अब इसकी नंबरिंग हम करेंगे तो डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड दिस। इसकी पहले तो नंबरिंग कर लो, ये सिलेक्शन हो गया, ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन हो गया, दिस इज माय लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। ये नंबरिंग हो गई 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ऑलराइट। अब इसकी हम नेमिंग करेंगे, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। तो प्रीफिक्स में क्या है, ये ब्रांच है, ब्रांच प्रीफिक्स की जगह पे आएगा। तो ये जो है देखो यहाँ पे, ये आपका फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन को एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, ओके, तो ये हो जाएगा आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल। और हमेशा जो छोटू से ब्रांचिंग को हम ब्रैकेट में लिखते हैं उसकी पोजीशन के साथ, तो 4 आइसोप्रोपाइल एंड हेप्टेन विल बी इट्स नेमिंग, हेप्टेन विल बी इट्स नेमिंग, ठीक है। और देखेंगे हम ऐसे एग्जाम्पल, सो दिस पार्ट विल बी क्लियर इन योर माइंड, ओके। सी दिस वन, दिस एग्जाम्पल ऑल्सो वी विल अंडरस्टैंड। अब सबसे पहले तो ये सिलेक्ट हो चुका है, इसमें नंबरिंग वंबरिंग सब हो चुकी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो छोटा चेन, छोटा जो ब्रांच है उसको भी हम नंबरिंग कर देंगे 1 2 3, और नंबरिंग बड़े वाले चेन से ही होगी, उसकी बड़े वाले चेन को जहाँ से अटैच है वहीं से उसकी नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो हम नेमिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले हम छोटे ब्रांच को इंडिकेट करते हैं ब्रैकेट में और उसके बाद मेन चेन को लिखते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट में लिखते हैं छोटे चेन का पूरा डिटेल। तो छोटे चेन में क्या है, सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो आप लिखो 2 डाइमिथाइल, 2 डाइमिथाइल, और ये मेन चेन में 3 कार्बन है तो ये लिख दूंगी मैं प्रोपाइल, ठीक है। 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल कौन से पोजीशन पे अटैच है, फिफ्थ, एंड मेन चेन में कितने कार्बन है 9, तो नो नेम, लाइक दिस वी हैव टू नेम, ओके। सो दिस इज सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड दैट वी शुड नो। छोटे छोटे ब्रांच हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं, let's solve this practice question. I'll solve one question and rest 2 you can solve, try to solve at least by using that formula, prefix, word root and suffix, okay. So let's do this one. So यहाँ पे नंबरिंग हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबरिंग मिलेगी और मोर प्रेफरेंस मिलेगा। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स, ठीक है। सफिक्स आर ऑफ 2 टाइप, प्राइमरी सेकेंडरी। लेट्स चेंज द कलर, ओके। अब प्रीफिक्स की जगह पे सब्स्टिट्यूएंट आता है, तो 2 जगह पे सब्स्टिट्यूएंट, एक 2 पे है एक 5 पे है, क्योंकि ये मेरा स्ट्रेट चेन होगा। देखो ये बॉन्ड लाइन थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला दिया है, ठीक है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जैसा कुछ दिया है। तो ये हो गया आपका 2 ब्रांच है, 2 मतलब सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों मिथाइल है। कौन कौन से पोजीशन पे, 2 and 5, सो 2 5 डाइमिथाइल। अगर फर्स्ट लेटर है तो उसको कैपिटल लिखो हमेशा, 2 5 डाइमिथाइल। उसके बाद क्या आएगा, वर्ड रूट, 5 है तो हेक्स, ठीक है। अब प्राइमरी सफिक्स इन आएगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है चेन में, सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो आप लिखोगे हेक्स 2 इन, ठीक है, लाइक दिस। एंड द रेस्ट 2 इज अगेन easy, just try to solve that sums. So this was my class, hope you liked it, and if you like this class, please do subscribe my channel and do subscribe our channel and share it with your friends also. Thank you so much.